Name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. And what kind of quantity is this? Scalar or a vector? Joule per coulomb we have. So joule is the unit of work. Yes, what is the answer? Electric potential or scalar quantity? Yes, it is electric potential because electric potential is work done per unit charge. Work is measured in joule and charge is measured in coulomb. So the unit is joule per coulomb. And electric potential is a scalar quantity. Please write this in your notebook. This is the first question of your assignment. You can write the answers directly in your assignment notebook. So have you kept your assignment notebook on your table? A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt. So what is the potential at the center of the sphere? We have a hollow metal sphere, radius is given, and on its surface potential is given. So what is the potential at the center of the sphere? Kritika, do you know the answer? So we have to use electric potential formula. Yes, electric K Q upon potential, R. see, on the surface is given. Electric potential on the surface is given. It is 5 centimeter. Radius is 5 centimeter and we have a hollow metal sphere. Electric potential on the surface is 10 volt. So what is the potential at the center of the sphere? At the center of the sphere, what would be the potential? Means we have to find the potential here at this center. O. क्या होगा बेटा? See, किसी को पता है इसका आंसर? फरहान, do you know the answer? Yes, ma'am. What is the potential at the center of the sphere? Any idea? See, if we give a charge to a metal sphere, whether it is a hollow or solid, if we have a conducting sphere and we give charge to the conducting sphere, then where does the charge go? Does it go inside the sphere or it gets uniformly distributed on its surface? When a charge is given to a conducting sphere, whether it is a hollow or a solid sphere, then the whole charge, any idea? Uniformly distributed on the surface. Yes. जो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जब हम किसी कंडक्टिंग स्फेयर को, डजेंट मैटर कि वो हॉलो है या वो सॉलिड है, उसको जब हम चार्ज देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज जो होता है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक दिस. ठीक है. एंड नो चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द कंडक्टर. अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्या कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो चार्ज मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? जहां चार्ज होगा. जहां जहां चार्ज नहीं है वहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, राइट? एंड नाउ बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हाउ डू वी रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल? Electric field is minus dV by dr, minus negative potential gradient is electric field. So if we are saying that electric field is zero, means negative potential gradient is zero. किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? जब वो क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है. इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सेंटर पे भी क्या होगा? 10 वोल्ट होगा. प्लीज राइट द आंसर.
Next question. Read the question first. A charge plus Q is placed at a point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative, or zero if Q is positive or negative? We have a point charge and this charge is placed at point O. So at point A and B, we're going to find the potential and then we'll take the potential difference. We have to answer whether the difference in potential is positive or negative, if the charge is positive or negative. So in the first case, when we are considering Q as positive, Q is greater than 0. So we have this charge here, somewhere here, right, at O. And now we are going to find the electric potential at A and B, two different positions. So let's take this distance as RA and this distance is RB. And how do we write for potential? Potential at A, कैसे लिखेंगे हम? Potential at A is K times charge over distance. This is correct. ऐसे लिखते हैं ना? अब B के लिए कैसे लिखेंगे? Potential at B, K times बोलो Q over RB. ठीक है? And which is greater, RA or RB? RB is greater than RA. And they are in the denominators, right? And you can see we have the same numerator. दोनों के केस में KQ है, numerator same है. तो जो जब numerator same होता है, the one which has greater denominator is smaller, no? है ना? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, राइट? अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर्स है सेम है, वी हैव सेम न्यूमरेटर्स हियर, KQ. So denominators are different. We can see RA and RB here. तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो क्वांटिटी बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी होगी. बिकॉज RB बड़ा है तो VB स्मॉल होगा. Because RB is greater, so VB is smaller. And RA is smaller, so VA has greater value. Right? So when we subtract, because here you can see we have VA greater than VB. So when we subtract, then VA minus VB is positive or negative? It is positive. So for a positive charge, if the charge is positive, VA minus VB is also positive. And it is not zero. Why not zero? Why is it not zero? Because they are at different distances. We are finding potential at different distances. तो जीरो कैसे हो सकता है? जीरो तब होगा जब सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं. ठीक है? क्लियर? हो गया. Okay. Next is what if we have a negative value of charge? Then what? अगर आपका Q less than 0 है, means आपका Q negative है. Again, we are going to find the potential at two different positions. Right? तो VA क्या आएगा आपका? Negative KQ upon RA. RA is the distance between the charge and the point. ऐसे इसको हम RB ले रहे हैं, यहां से यहां तक we are taking RB रो. तो अब VB क्या आएगा आपका? Minus KQ upon RB. Again, RB is greater than RA. So KQ by RB. That's your VB, no? Minus KQ by RB is VB, but we're taking KQ by RB only, we're neglecting the negative sign. तो ये आपका smaller होगा इससे. But अगर हम negative sign consider करते हैं, then it becomes greater. Right? है ना? For example, if I write 2 less than 3, but when we put a negative sign, then minus 2 become greater than minus 3. On putting the negative sign. तो यहाँ पे भी जब आप negative sign लगाओगे, तो this fraction will become greater. तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि जो VB है, it is greater than VA. है ना? This is your VB. So VB is greater than VA this time. So because we have to find the sign of this VA minus VB. So VA minus VB क्या आएगा? Positive, negative or zero? Because VB is greater than VA, VB is negative here, so it is negative. So if charge is negative, then electric potential difference is also negative.
Please write this. अच्छा, इसमें जो आपके असाइनमेंट में 4th क्वेश्चन है वो हमने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। कृतिका, आपने वो क्लास अटेंड की थी जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, जिसमें हम इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट लेते हैं? Yes, ma'am. आपको आता है फिर? आद्या, आप प्रेजेंट थे उस क्लास में? बिकॉज आपने बीच में को ऑफ लिया है। वर यू प्रेजेंट ऑन दैट डे? जस्ट चेकिंग कि कर रहा है या नहीं। प्लीज रीड द क्वेश्चन नाउ। We have 3 charges this time, 1 in 10 to minus 8 coulomb each, and they are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and electric potential at the center of the triangle. Center of the triangle is the centroid. Center of the triangle is the centroid. कैसे करोगे बताओ? First draw an equilateral triangle. And the side of the equilateral triangle is 20 centimeter. It is given to us. So A is 20 centimeter. Let the side of the equilateral triangle be A. It is 20 centimeter, or we can write 0.2 meter. ठीक है? And charge of 1 into 10 power minus 8 coulomb. We can neglect 1. We can just write 10 power minus 8 coulomb here, 10 power minus 8 coulomb at C, and we have 10 power minus 8 coulomb at B. And these are positive charges, and they are placed at the 3 corners of an equilateral triangle. So we have to find the electric field and the electric potential at the center of the triangle. So what is center of the triangle? It is the centroid. Center of the triangle is the centroid where all the medians meet. ठीक है? तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल की अगर बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमें सेंटरॉइड पे we have to find the electric field intensity and the electric potential. ठीक है? कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे आपका जो चार्ज है एट ए, जो आपका चार्ज ए पे है, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है? सेंट्रॉइड से ये है, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, और जो चार्ज बी पे है उसका डिस्टेंस सेंट्रॉइड से कितना है? ये है। चार्ज सी का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितना है? ये है। So you'll find that all these 3 distances are equal. Let's say that they are equal to r. ठीक है, और हम ये डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं? r को, r क्या होता है आपका? This you might have done in maths. How do we relate the side and this distance, centroid distance? It is a by root 3. This is how they are related. r is equal to a upon root 3. ठीक है, इसको आप फाइंड भी कर सकते हो क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियंस और अल्टीट्यूड कोइंसाइड करते हैं। तो ये अगर आपका ए है साइड, तो ये आपकी इधर, अगर यहां तक इसको नीचे तक एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी साइड जो है वो कितनी हो जाएगी? a by 2। और फिर पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर। ठीक है ना, निकाल सकते हो ना ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। बेस इज a by 2, हाइपोटेनियस इज a, वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद ये जो रेशियो आएगा आपका, ये 2:1 का रेशियो होता है, वहां से आप सेंट्रॉइड, ये जो डिस्टेंस है ये निकाल सकते हो। ठीक है, और आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, r is equal to a upon root 3. So from here we can find the value of r. It is 0.2 by root 3 meter. Please write this. रूट 3 की जो वैल्यू होती है आपकी, वो कितनी होती है? 1.732. You can put the value and please solve this. You'll get your answer in decimals for r. क्या आंसर आ रहा है? नियरली इक्वल टू बता सकते हैं?
अगर पीछे जीरोस भी लगाएंगे तो पहले आपका ये 1 से जाएगा, बिकॉज 1732 और ऊपर 2000 भी लेते हैं, अगर हम 2000 अपॉन 1732 कर सकते हो, ठीक है। तो 1 से जाएगा और उसके बाद फिर ये 1 से जाएगा, तो नियरली इक्वल टू 0.11 कितना आ रहा है आद्या? हम 0.11 आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द आर, वैल्यू ऑफ आर। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सी वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शंस कंसिडर करनी पड़ेंगी। डायरेक्शंस कंसिडर करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें वी डू नॉट बॉदर, विल नॉट बॉदर डायरेक्शंस, वी कैन सिंपली add the electric potentials of all the three charges at this point. That's easier. But when we have to find mark the directions, तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। अब बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे आपके तीनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? फरहान, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? टूवर्ड्स। टुवर्ड्स बेटा नेगेटिव के लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ हाँ, अवे अवे। और आप ये देख रहे हैं एक चीज और, तीनों चार्जेस का वैल्यू आपका 10⁻⁻8 है, और तीनों का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखते हैं, देन वी राइट KQ/R² इंटू आर कैप, और यू कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ E as AQ/R²। तो इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज वैल्यू एंड द डिस्टेंस। So you can see for all the three charges we have the same value of charge and they are placed at equal distance from the centroid O. तो Q और R तीनों चार्जेस के लिए आपका सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो तीनों चार्जेस के लिए आपकी सेम है, राइट। तो अब अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ये आएगी डायरेक्शन। लेट्स राइट E फॉर ऑल थ्री, इंस्टेड ऑफ राइटिंग E1 E2 वी कैन राइट E फॉर ऑल थ्री, और वी कैन राइट, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियली हम इसको EA EB EC कर दें और बाद में हम E कर दें, क्योंकि आपके तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा, बिकॉज दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस एंड दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो EA का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज लोकेटेड है पॉजिटिव चार्ज ये वाला, तो इसका अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अब बी पे भी 10⁻⁻8 पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा EB, है ना। ये आपका EB आ गया, और ऐसे ही आपका EC क्या आएगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, सो दिस इज योर EC। अब you can see all the three electric field intensities are pointing in different directions. So when we get something like this, then what do we do? What is our next step? What should be our next step? रिजल्टेंट। We resolve and then find resultant. पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। और कैसे रिजॉल्व करेंगे बताओ जरा। आप ये वाला जो आपका EB है ये किधर जा रहा है? इसको अगर हम थोड़ा स्ट्रेच करें, then where is your EB going? It is going in this direction. EB is like this, है ना। स्ट्रेच कर सकते हैं, और ऐसे ही आप EC को अगर स्ट्रेच करोगे तो वो कहां जाएगा? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन जाएगा। EC आपका इधर जा रहा है और EB आपका इधर जा रहा है, थोड़ा वेक्टर है, हमने स्ट्रेच कर दिया उसको। तो अब आपके पास डायरेक्शंस आ गई। नाउ यू कैन इजीली रिजॉल्व देम, ठीक है, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है EB का, लेट्स सी फॉर EB फर्स्ट, लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन and let this angle be theta. Both will make the same angle, है ना। तो आपका जो ये EB है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? EB cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ आएगा इसका? यहाँ EB का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आएगा EB sin थीटा। ऐसे ही EC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ आएगा EC cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट EC का यहाँ आएगा EC sin थीटा।
अच्छा, अब क्या समझ आ रहा है यहाँ पे? यू कैन सी जो ईबी कॉस थीटा है और ईबी साइन थीटा, ईसी सॉरी ईसी कॉस थीटा, नॉट ईबी साइन थीटा, ईसी कॉस थीटा, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो, और ईबी और ईसी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और कॉस थीटा एंगल भी इक्वल है, तो दे विल कैंसिल आउट इन पेयर्स, है ना? तो नेट जो आपका साइन थीटा, यू कैन सी लुक एट द साइन थीटा component now, they both are pointing in the same direction, both EB and EC sin theta, they are pointing in the same direction, so we can add them. So अब एक चीज और हमें क्लियर हो रही है यहाँ पे, now we have three electric fields and how are they pointing, let's find out. देखो, ये एक लाइन है और इसमें आपका जो EA है, this green colored arrow you can see represents EA, it is pointing downward, and both EB sin theta and EC sin theta are pointing upward. है या नहीं है या नहीं है ना? तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे, बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी आपकी? कृतिका, आपको समझ आ रहा है ये? ई ए, हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया ना? यस मैम, थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजिंग हो रहा है। कुछ नहीं है। देखो, इसमें जब भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन होती है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तब उसमें आप उसको रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, उसमें आप डायरेक्शन कंसिडर करते हो, और जब पोटेंशियल करना होता है तो उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करके वी कैन सिंपली ऐड देम, है ना? तो आपने फर्स्ट चैप्टर किया नहीं है अभी, ठीक है? तो एक बार आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपको फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और आप एक काम और कर सकते हो, मीनवाइल यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स। मैं भी इसीलिए थोड़ी थोड़ी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। हम सारा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं लेक्चर, बट वी आर रिकॉर्डिंग ओनली द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि थोड़ा सा आपको, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता लगे कि हमने क्या किया था, ठीक है? नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग्स वैसे रखी हुई हैं, यूट्यूब पे भी हैं, बट आप एक बार उसको देखो। लेकिन जब मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको कॉल कर लूंगी, हम किसी भी संडे वीकेंड में बैठ के विल डू द फर्स्ट चैप्टर, और वी कैन गिव संडे टू ऑल द चिल्ड्रन कैन रिवाइज 2-3 आवर्स की, हम इंडेफिनिट क्लास रख के वी कैन रिवाइज द चैप्टर, ठीक है? तो अभी आपका EA इज पॉइंटिंग डाउन एंड दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटीज आर पॉइंटिंग अप, सो बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो द वन विच इज पॉइंटिंग डाउन आई एम टेकिंग पॉजिटिव, तो जो ऊपर वाले होंगे तो वो क्या लूंगी मैं, नेगेटिव लूंगी। साइन कन्वेंशन है ना? एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव लेते हैं हम। तो ये आपका माइनस EB साइन थीटा और माइनस EC साइन थीटा प्लस EC साइन थीटा, सॉरी, इन अ ब्रैकेट आ जाएगा आपका। EB और EC को वी गोइंग टू ऐड एंड विल पुट देम इन द ब्रैकेट लाइक दिस। एनी डाउट इन दिस? यहां तक क्लियर हो गया? अब ये थीटा वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? और EB EC EA के प्लेस पे आई कैन राइट E माइनस E। नाउ व्हाट इज दिस थीटा एंगल? थीटा एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये एंगल आपका जो बनता है इसमें, ये बनता है 120 डिग्री पूरा एंगल, ठीक है? तो ये एंगल कितना होगा आपका, बताओ? मतलब जो सेंट्रॉइड जो एंगल फॉर्म करता है ऐसे, जो ऐसे सेंट्रॉइड का ही बनता है, ये तीनों एंगल्स आपके 120 डिग्री के होते हैं। 360 टोटल हो गया। तो ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, बताइए? हम 30। यस, 30। कैसे फाइंड किया आपने? मैंने लाइक दूसरी चीज से की, लाइक जो बी का होता है पूरा, लाइक इक्वेटोरियल ट्रायंगल में 60 होता है, देन हाफ वो होगा क्या बोलते हैं 30। तो हमने देखा कि लाइक वो है ना, लाइक हॉरिजॉन्टली है, तो लाइक पैरेलल लाइन से हो गए थोड़ा हाँ, से, तो उसे 30 आ गया। ये 30 आएगा। ये 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री एंड प्लस E साइन 30 डिग्री अगेन वी कैन राइट, ठीक है? अब ये क्या आ गया आपका E माइनस
साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ. So it's E by 2 plus E by 2 in the bracket. So we can write this as E. So E minus E, it is 0. So net electric field intensity at the centroid, at the center of the triangle is 0. Please write the solution. थोड़ा जल्दी करेंगे, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी. 30 डिग्री कैसे आया? ये पूरा आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइंस है, ये 90 डिग्री है ना? और ये आपका, ये 90 डिग्री है पूरा, यहां तक ये 90 है. अच्छा, और ये पूरा आपका 120 है, यहां से लेके यहां तक 120 है. और ये इसका बाइसेक्टर है. तो अगर ये आपका 30 है बचा हुआ, तो ये भी आपका 30 है, और ये आपका 60 है. इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये 60 है, 30 30. डन. अच्छा, अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? Potential is a scalar quantity, right? Here we will not bother about the directions. We can directly add the potential, electric potential, because of all the three charges at the center. कैसे करेंगे? बताइए. आद्या, डू यू नो कैसे करना है? एनी आइडिया? हाँ जी, पोटेंशियल, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है सेंट्रोइड. इट्स बिकॉज ऑफ ए, potential at A because of the charge at A, plus potential because of the charge at B, potential at point O because of the charge placed at C. Right? Because you can see charges are the same, distance is also the same, so we can write kq by r for all three. So it becomes 3 kq by r. Now put the values and you'll get your answer. We'll simply add the potentials because of all the three charges at the point at the centroid, and we'll get the net potential. 3 k is 9 in 10 power 9. Charge is given, it is 10 power minus 8, and the distance is 20, we got the distance, right? The value of r क्या आई थी? जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो, ऐसा आया था ना. r कितना आया था आपका? 0.2 अपॉन √3 आया था. हम 0.115. हाँ, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. नाउ यू कैन सॉल्व दिस फॉर पोटेंशियल. करो. तो डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा. 2 1s are 2, 2 5s are 10. 45 3s का कितना होता है? 27 5s कर लेते हैं. 135 आ रहा है. 5 3s 15, 9s भी कर सकते हैं. So 135 √3 इंटू 10 पावर 9 माइनस 8 हो गया, तो 10. So 1350 √3 volt. Or we can write in standard form as well. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? वन पॉइंट 350 √3 into 10 power 3 volt. And what is √3? We can put the value of √3, multiply, and you'll get your answer properly in decimal form. It's 1.732.
और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 0.11 करके इसका आंसर ही डेसिमल में निकाल, और यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। वी हैव टू थिन concentric shells of radii r1 and r2. R2 is greater than r1, having charges q1 and q2. Concentric means they have the same center. We'll assume that they have the same center. So radius of this shell is r1 and radius of this shell is r2, and r2 is greater than r1, and they have charges q1 and q2. So write the expression for the potential at the surface of the inner and outer shells. So for the inner shell, what is the potential? Inner shell के लिए potential क्या होगा? For the inner shell, we'll consider only the, बताओ इनर शेल के लिए पोटेंशियल क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे, इनर शेल के लिए पोटेंशियल क्या होगा आपका? फॉर द इनर शेल, potential due to this charge at this point is kq1 by r1, no? एंड अब हमने एक चीज और पढ़ा था कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है, अगर उसकी सरफेस पे पोटेंशियल kq by r है, तो उसके अंदर भी जो पोटेंशियल होता है वो kq by r ही होता है। सेंटर पे भी वही होगा, जो मतलब अंदर भी वही होगा और जो बाहर है सरफेस पे। तो फॉर द सेकंड स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज kq2 by r2, तो वो सेम पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। सेकंड शेल की का जो सेम पोटेंशियल एट द सेंटर, एनीवेयर इन द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, वो सेम होगा इस पॉइंट पे, kq2 by r2 लिख सकते हैं। विल सिंपली ऐड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ बोथ द चार्जेस। अब आउटर शेल का कैसे निकालेंगे? बताइए, आउटर शेल के लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? एट द सरफेस ऑफ द आउटर शेल कैसे निकालेंगे? तो अब अगर आपका ये वाला, हम इनर शेल कंसिडर कर रहे हैं, इसका रेडियस है r1, r1 अभी बॉदर नहीं करते बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r2। तो यहां पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज q1, तो वो पोटेंशियल क्या होगा आपका? kq1 by r2 हो जाएगा फॉर द इनर शेल ओनली। एट दिस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? kq1 by r2। और आउटर शेल के लिए भी आपका क्या आएगा? kq2, बट आपका जो चार्ज आपका डिफरेंट आ गया, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा बिकॉज r2 है यहाँ पे। तो वी कैन टेक दिस कॉमन, नो? तो r2 हम इसको वो ले सकते हैं, k को कॉमन ले सकते हैं, एंड r2 को हम डिनोमिनेटर को कलेक्टिवली वी कैन राइट q1 plus q2 अपॉन r2 आ जाएगा आपका। क्लियर है? कृतिका को क्लियर नहीं हुआ शायद ये। नो मैम, क्लियर है।